بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت وعدہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اعجاز عباسی صاحب. اعجاز عباسی صاحب روزنامہ صدائے چنار کے ایڈیٹر ہیں اور سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. اعجاز عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. آج کا پروگرام ہم بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، سچی بات ہے کہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور دن بہ دن جس طرح صورتحال خراب ہو رہی ہے. آج لاک ڈاؤن کا احتجاج کا تیسرا روز ہے، اور ابھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں مظفر آباد سے کہ مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور تصادم ہوا بینک روڈ میں ایف سی کے ساتھ کن شیلنگ کی ہے، فائرنگ کی ہے. یہ اطلاعات ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 نوجوان جو ان کی شہادت ہوئی ہے مظفر آباد میں. اب حالات بھائی صاحب مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. کل لوگوں نے جو انٹری پوائنٹس تھے اس کی جانب مارچ کیا، اور آج کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ مظفر آباد میں سارے لوگ آزاد کشمیر بھر سے وہ مظفر آباد پہنچیں، اور پھر اگلا وہاں سے لائے عمل اس کا اعلان کیا جائے گا. اب آپ کس جانب یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ مطلب وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تک مکمل خاموشی ہے. کل آزاد کشمیر حکومت کے وزراء نے مذاکرات کی دعوت دی، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. ان کا مطالبہ تھا کہ جو سروسز ہیں اس کو بحال کریں. موبائل نیٹ ورک وہاں پہ بالکل مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ کی سروس مکمل شٹ ڈاؤن ہے، یعنی ایک بلیک آؤٹ ہے جس طرح آکوپائڈ کشمیر میں ہوا تھا. یہی صورتحال یہاں پہ بھی لگ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. آزاد کشمیر میں آج تیسرا دن ہے لاک ڈاؤن کا، اور بلیک آؤٹ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں وہ ہے، اور یہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. پہلے 2 دن تو مظفر آباد کے علاوہ سلسلہ پورے آزاد کشمیر میں پرامن رہا. لوگوں نے شٹر ڈاؤن کیا، پہیہ بھی جام کیا، ہڑتال کی رضاکارانہ طور پر. لیکن اب کچھ مزید اشتعال کی خبریں آ رہی ہیں آزاد کشمیر پر سے. ابھی ایک اطلاع جو آپ نے بیان کی ہے مظفر آباد سے آئی ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی جھڑپ ہوئی ہے، لیکن یہ ان کنفرم بات ہے، کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر کمیونیکیشن سسٹم سارا ڈاؤن ہے، اور کہیں سے رابطے نہیں ہو پا رہے، ٹیلی فون نظام نہیں ہے. جو مظفر آباد سے کورنگ کرنے والے ہمارے نوجوان صافی دوست ہیں، وہ دور دراز پاکستان کی حدود سے آ کر اونچے اونچے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا میسیج کنوے کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اطلاعات چونکہ وہ نظام متبادل بھی موجود ہے، اور اس سے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور جو انٹری پوائنٹ بند کرنے والی بات تھی اس میں اتنی شدت تو اس طرح کی نہیں دیکھی گئی، اگرچہ بند ضرور کی گئی، لوگوں نے اس کی طرف مارچ بھی کیا. لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے جس میں آزاد کشمیر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جب قافلے چلیں گے تو وہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹوں میں مظفر آباد نہیں پہنچیں گے، وہ اس میں ظاہر ہے 30-40 گھنٹے 35-36 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور جوں قافلے آگے بڑھیں گے، جوں بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور مظفر آباد میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں ایک نوجوان شہید ہو گیا تھا، اس کے بعد تو آزاد کشمیر میں ایک زیادہ اشتعال ہے، زیادہ غم و غصہ ہے، لوگ اگریسو ہوئے ہیں، لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک طرف اگر پرامن ہے، وہ کسی نے گملہ نہیں توڑا، کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا، وائلنس نہیں کی. کل آزاد کشمیر میں آپ نے 1-2 واقعات دیکھے ہوں گے کہ پولیس اہلکار کہیں لوگوں کے گھیرے میں آ گئے تھے تو کسی نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بڑے باعزت محفوظ طریقے سے ان کو سیف پیسیج دیا گیا، ان کو نکالا گیا وہاں سے. تو دوسری طرف جب فائرنگ کی، اور بالخصوص مظفر آباد میں جو ایک سول لوگوں کو سڑکوں پر لا کر مسلم کانفرنس کے لوگوں کو فائرنگ کروا کر ایک شہادت اور 15-20 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، اس نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ آزاد کشمیر کے وزراء نے جو مذاکراتی ٹیم کا پہلے حصہ بھی تھے، ان میں خاص کر فیصل ممتاز راٹھور صاحب بڑا ایک مچور سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے دوبارہ ویڈیو میسیج، لیکن آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کمیونیکیشن سسٹم بند ہونے کی وجہ سے، سوشل میڈیا بند ہونے کی وجہ سے، ٹیلی فونک رابطے کٹنے کی وجہ سے سارے ممبران اسمبلی، ہم نے اسلام آباد بیٹھ کر تو میسیج سن لیا، لیکن آزاد کشمیر کے وہ دور دراز دیہات جہاں کور کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے مذاکرات کرتے ہیں، ان تک میسیج نہیں پہنچا. اس کے جواب میں انہوں نے آزاد کشمیر کی کور کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے انہوں نے اس مذاکرات کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے شرط یہ رکھی کہ کمیونیکیشن سسٹم بحال کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے، کوئی کمیونیکیٹ کر کے، کوئی صلاح مشورہ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھیں، کوئی جواب دیں. تو ابھی تک حکومت آزاد کشمیر نے، ویسے تو یہ حکومت آزاد کشمیر کنٹرول میں نہیں ہے، حکومت پاکستان نے اگر واقعی سنجیدگی سے انہوں نے مذاکرات کی دوسری دعوت دی ہے تو لوگوں کو کم از کم اتنا کمیونیکیٹ ضرور کرنے کی موقع دیں کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد کوئی معقول جواب دے سکیں، اور اپنی کسی ٹیم کو وہاں بٹھائیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو خراب ہے، اور پچھلے 3 دن سے کوئی سیریس ایفرٹس ہمیں
हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से इस जो वीडियो मैसेज कल जारी हुआ है 3 वज़रा का, इसके अलावा बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रही और ये सूरत-ए-हाल एक ख़राबी की तरफ जा रही है। और हुकूमत पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इंटरवेन करके नोटिस लेकर आज खुद एक बार फिर अपना मुज़ाकराती कोई वफ़द मुज़फ़्फ़राबाद भेजें या अवामी एक्शन कमेटी वालों को किसी महफूज जगह पर बुलाकर उनसे मुज़ाकरात करें। आपको पता है ज़ाहिर है जो अवामी एक्शन कमेटी में शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में रात को उन्होंने आना था वापस से, भी मुझे कंफर्म इत्तला नहीं है। वो जाके लेटे हुए लंदन में और फूले नहीं समा रहे हैं कि ट्रंप ने हमसे हाथ मिला लिया, हमसे बगलगीर हो गया। ये देखे ना उस्मान साहब, असल अफसोसनाक सूरत यही है कि आज़ाद कश्मीर में बैठी एक ऐसी हुकूमत है जिसको लोग बिल्कुल नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। ये सियासी पार्टियों की हुकूमत नहीं है, ये चंद MLAs की हुकूमत है और ये अशखास की हुकूमत है। एक ऐसा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है जिसने आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को बहुत बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया है। उसके बावजूद वो उसके वज़रा मुतालबा कर रहे हैं और फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ हुए। तो वो तो गैर संजीदा लोग हैं, उन गैर संजीदा लोगों के साथ पहले भी मुज़ाकरात हुए, वादे वाइद हुए, माहिदों पर दस्तखत हुए, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इश्तियाल फैला है। और अब वही ग्रुप मिलकर पाकिस्तान में ये बात प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात फैला रहे हैं। हालांकि इनको पढ़ा जाए, लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकले, अपने हुकूक के लिए निकले और इसको नाम दिया जा रहा है पाकिस्तान मुखालिफ। देखिए ना, अब उस्मान ताहिर साहब अगर अखलाकी जरूरत होती चौधरी अनवारुल हक में, जिस तरह अवाम का रेफरेंडम था उनके खिलाफ बिल्कुल खिलाफ रिजाइन करना चाहिए था। और ये सारे लोग जिन्होंने अपनी मराद के नाम पर आज़ाद कश्मीर को ब्लैकमेल करके, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ब्लैकमेल, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ब्लैकमेल, हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये जो अवामी तहरीक ने, अवामी एक्शन कमेटी ने ये शुरू कर रखा है, ये पाकिस्तान मुखालिफ है। मुझे हैरानगी हो रही है हुकूमत पाकिस्तान से भी, हुकूमत पाकिस्तान के इदारों पर भी, कि वो क्यों नहीं इनकी ब्लैकमेलिंग को समझ रहे, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को आज़ाद कश्मीर के लोगों के हाथ से काट कर एक मखसूस ग्रुप है जिन्होंने अपने लिए मुख्तस आज़ाद कश्मीर के लाखों अवाम ने मौजूदा हुकूमत जो किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है उस पर अदम एतमाद कर दिया है। अब इस अदम एतमाद के ऊपर पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। हमारा मुतालबा उन्हीं से है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिस्टम है, आज़ाद कश्मीर वालों को गुड गवर्नेंस देने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। हुकूमत पाकिस्तान से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपने अवाम का पेट काट कर जो बजट दे रहे हैं वो बजट आज़ाद कश्मीर में अलल तललों पर खर्च किया जा रहा है। उससे फॉर्च्यूनर 2.5 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उससे 3-3 गुना मराद बढ़ाई जा रही हैं और मराद अवाम को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। एक खास ग्रुप है जिसकी तादाद को 1500 से ज्यादा नहीं है। उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के सारे बजट को, सारे वसाइल को, सारे निज़ाम को यरमाल बनाकर रख लिया है। हुकूमत पाकिस्तान से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस सिस्टम के ऊपर या तो खुद नोटिस लें या आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये करने दें ताकि इन लोगों को कम अज कम कोई डर खौफ पैदा हो और अपनी मराद पर कहीं जाकर तो कम अज कम रुक जाएं। इनकी मराद कहीं रुकने वाली है ही नहीं रुकने वाली। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने इनके लिए 500 लीटर पेट्रोल की हदम कर दी थी और मुझे कई वज़रा ने और मशीरों ने मेरे साथ इस बात की तस्दीक की है कि हमारे पास जो 2 गाड़ियां उनमें से एक गाड़ी में अनलिमिटेड पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी के लिए 500 है। ये एक तरफ कहते हैं हमारी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और मुझे कई लोगों ने ये तस्दीक की है कि हम 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए बाकी सारी मराद से हट के मराद से हट के हम तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। 4.5 ये गलत बयानी आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी ये नहीं, लोग इस तरह की बातों को कबूल करते ना, लोगों के दिल सादा हैं। अब लोगों के पास काउंटर चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और ये नहीं छिपाया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में ख़राब होने वाली सूरत-ए-हाल को ठीक करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये UN करारदादों के तहत भी इस बात के पाबंद हैं और हुकूमत पाकिस्तान का एक आज़ाद कश्मीर यूनिट होने की बुनियाद पर भी हुकूमत पाकिस्तान की और इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ाद कश्मीर में ख़राब होने वाले माहौल को ये ठीक करें। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का एक बाशिंदा भी पाकिस्तान के खिलाफ बात से भाई साहब हम पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को ये बताना चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप पूरा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ लें। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान की कौमी सलामती हो ही नहीं सकता। के खिलाफ है। ये गलत बयान किया जा रहा है। और जी हाँ, उस्मान ताहिर साहब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इस बात का। हमारे कई लाख लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मुलाजम हैं
اور لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں. ہمارا غلہ ڈپینڈ کرتا ہے گوجرانوالا کی منڈی سے, راولپنڈی کی منڈی سے, منسیرا کی منڈی سے. ہمارے یہاں پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کشمیری سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بات صحیح ہے کہ خود مختار نظریات رکھنے والے کشمیر کے اندر ایک لوگوں کی تعداد ضرور موجود ہے, لیکن باقی سارے لوگ حالانکہ پاکستان کا حامی ہیں, لیکن آپ کو بھارت کا حامی ایک کشمیری بھی نہیں ملے گا. بھارت ہمارا قاتل ہے. بھارت نے ہمارے 1.5 لاکھ لوگوں کو مارا ہوا ہے. ایک قاتل اور ظالم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر والوں کو جو بجٹ دیتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے, وہ بجٹ یہ اپنے عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں. آپ اس کو نوٹس لیں. آپ 38 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ میں پڑھیں, 1 یا 2 مطالبات جس میں حکومت پاکستان کو ایڈریس کیا گیا ہے, جو ایک یہ نیلم جلم پروجیکٹ ہے. اس کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 2019 میں کہ اس میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر ایک معاہدہ کرے, یعنی پاکستان وابڈا اور حکومت آزاد کشمیر ایک معاہدہ کرے. اس کی بات ہے. باقی سارے کے سارے مطالبات آپ نے دیکھے ہوں گے حکومت آزاد کشمیر متعلق, جس میں کہیں ہے کہ مراد کم کریں, جس میں کہیں ہے کہ غیر ضروری طور پر یہ آپ جو گاڑیاں استعمال کریں کم کریں. یعنی ایسے تجاویز دی گئی ہیں جو بجٹ بچانے والی ہیں. وہی بجٹ بچا کر آپ کو اسپتالوں میں کام آئے گا, آپ کو اسکولوں میں کام آئے گا, آپ کو سڑکیں ٹھیک کرنے میں کام آئے گا, آپ کو انفراسٹرکچر بہتر کرنے میں کام آئے گا. آپ شتر بیمار یہ سارا نظام آپ نے چھوڑا ہوا ہے. اس طرح تو آزاد کشمیر کے اندر غم و غصہ ابھر رہا ہے, اور غم و غصہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. غم و غصہ اپنی اس کے خلاف ہے جس کو پاکستان کی حکومتیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے ادارے تحفظ دے رہے ہیں, جو پالیسی ساز ہیں. اچھا, گزشتہ روز ہمارے یہاں پر دوست صحافی ہیں پاکستان کے, ان کی کچھ پوسٹیں میں نے دیکھی ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے وہ دیکھ کے. نواز رضا صاحب موسٹ سینئر صحافی ہیں, ان کی پوسٹیں تھیں. فاروق فیصل خان اور 1-2 دوست ہوئے ہیں, ان کی پوسٹیں میں نے دیکھی. ابصار عالم صاحب نے ٹی وی تبصرہ کیا, اور میں نے ٹی وی سنا ہے. مجھے بڑا شدید مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ ابصار عالم صاحب ہماری کمیونٹی کے بہت بڑے آدمی ہیں. ہمارے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ ہے. وہ بہت ہی اہل علم بصیرت والے آدمی ہیں. مجھے ان کی گفتگو سن کر محسوس ہو رہا تھا جیسے آزاد کشمیر کے چارٹر آف ڈیمانڈ اور انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا. بغیر اسٹڈی کیے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے. بغیر اسٹڈی کیے وہ دے رہے تھے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ جو وفاداریاں ان کے اوپر شک کر رہے تھے اور تانے دے رہے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, نواز رضا صاحب ہمارے وہ بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے. ابصار عالم صاحب ہوں, فاروق فیصل صاحب ہوں, ان کو آزاد کشمیر کے ایشوز کو پوری طرح اسٹڈی کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں ابہام ہو وہ اپنے جاننے والے جو آزاد کشمیر کے جرنلسٹ ہیں یا کوئی اور طبقہ ہے ان سے اس کی کلیریفیکیشن کریں, اس کے بعد رائے دیں. وہ بغیر ان کو کہیں کسی نے میرے خیال میں چیزیں شاید اس طرح یک طرفہ طور پر بتا دی ہیں اور انہوں نے چیزوں کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بجائے کیا ہے. یہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسی ہی طرز عمل صوبہ سرحد کے لوگوں کے خلاف بھی اپنایا گیا ہے اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس تو پاکستان کے علاوہ جناب عثمان طاہر صاحب کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں عباس بٹ صاحب, وہ نیشنلسٹ ہیں, بڑے کٹر خود مختار نظریات کے حامی ہیں. میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا یہ کیا نظریات آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کوئی قابل عمل بات یہ ہے. انہوں نے کہا ہم مرتے دم تک اس نظریات پر قائم رہیں گے, لیکن اگر آخر میں جا کر ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہوا تو ہم پاکستان کو چنیں گے. میں نے کہا وہ کیوں, مخالفت کر کے. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے, سرے سے کوئی آپشن نہیں ہے. بھارت بہت بڑا ملک ہے جس میں ہم مر کھپ جائیں گے, ہم غائب ہو جائیں گے, ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہماری شناخت برقرار رکھے گا, ختم نہیں کرے گا. اس میں ہم اپنی شناخت برقرار رکھ سکتے ہیں, جس کی مثال انہوں نے بہت سارے پاکستان کے اندر بیٹھے کشمیری بزنس مینوں کی, کشمیری سیاسی لیڈروں کی مثال, بیوروکریٹوں کی مثال دے کر, جنرلوں کی مثال دے کر مجھے سمجھایا, اور میں بڑی مطمئن ہو گیا ان کی باتوں سے. یہ نظریات نیشنلسٹ جو خود مختار کشمیر والے لوگ ہیں ان کے بھی یہ نظریات ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ اگر 2 آپشن ہی ہوئے, پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ایک اور تازہ ترین کیا صورتحال ہے, لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز کشمیری بڑے جو ہیں وہ اس بارے میں ان کو بڑی تحفظات ہیں, اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو لیٹسٹ ابھی کی سچویشن ہے, آج تیسرے دن کی جو تازہ ترین صورتحال وہ ابھی تک جو موصول ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک لاک ڈاؤن مکمل ہے, اور قافلے آزاد کشمیر میں مظفر آباد کی طرف سارے جگہوں سے چل پڑے ہیں, اور قافلے مظفر آباد کی جانب رواں ہیں. جی اور اب مزید کتنا ٹائم. ایک خاص بات یہ ہے کہ جو امجد علی خان صاحب ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت بڑے کور ممبر ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آئین قانونی یعنی ماہر ہیں, اور وہ پاکستان وہ لندن گئے ہوئے تھے, کل انہوں نے مظاہرے میں کہیں شرکت کی تھی.
आज सुबह वो जब पहुंचे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तो उनको हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा। और मैं तो वैसे ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हिरासत में शायद एक तो उन्होंने जलसे में शिरकत की थी लंदन में। साबिक प्रोसिक्यूटर भी थे ना, प्रोसिक्यूटर नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं रजा अली खान साहब। अच्छा। और इनके भाई शफकत अली खान साहब जो SSP रिटायर हैं, ये उनके भाई हैं अमजद अली खान। ये बहुत बड़े कानूनी माहिर हैं आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में। और ये वो बंदे हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट में माजीन सीटों के खिलाफ 2016 में केस भी किया था। गोया कि आप ये समझ सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में माजीन सीटों के हवाले से जो लोगों को मुतारफ करवाया है उनमें KD खान साहब जो वो भी वकील, जस्टिस मंजूर गिलानी साहब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ये अमजद अली खान साहब ये हैं। ये 3-4 लोग थे जिन्होंने उनको हिरासत में ले गया। और अभी ये इतला आ रही थी कि उनको शायद छोड़ भी दिया गया है, लेकिन पहले वाली तो हिरासत में ले जाने वाली इतला कन्फर्म है इसलिए कि उनकी फैमिली ने कन्फर्म किया है उसको। लेकिन छोड़े जाने वाली बात मैं वैसे ज़्यादा तौर पर यह समझ रहा था, और मुझे शायद किसी ने थोड़ा सा, मैंने किसी से बात भी की थी, मैं ख्याल ये कर रहा था चूंकि अवामी एक्शन कमेटी ने जो उनके बगैर आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा से मुज़ाकरात किए तो उन्होंने उनकी कमी महसूस की गई है। जो उनके बारे में कुछ लोगों ने राय भी दी थी अगर इन मुज़ाकरात में वो होते तो ये मुज़ाकरात कभी लॉकडाउन यानी वो डेड लॉक ना होता। तो मेरे ख्याल में शायद हो सकता है पाकिस्तान के इदारों ने भी ये मुनासिब समझा हो, सियासी लीडरों ने भी, कि इनको बैठाया जाए किसी जगह पर, इनको बताया जाए, टास्क दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर ये जो कुछ हो रहा है इसको आप कंट्रोल करने में कोई अपना रोल दें। और ये अगर इस तरह की सोच है तो मैं समझता हूँ इसकी सपोर्ट की जानी चाहिए। अच्छी बात है। दूसरी तरफ ताज़ा दिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर से काफिलों ने मूव शुरू कर दिया है मुजफ्फराबाद की तरफ। और ये जो सबसे तशवीशनाक इतला मुजफ्फराबाद से आई है कि एक और नौजवान शहीद हो गया है, कन्फर्म नहीं है, अनकन्फर्म खबर है, लेकिन बात ये फैली हुई है। बाकी आज़ाद कश्मीर में अभी तक कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े और इस तरह की बैठी में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो आपको पता है ज़ाहिर है रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। जब नौजवान ज़ाहिर है जज्बाती होते हैं तो पुलिस के पास भी ज़ाहिर है आंसू गैस से शेल मारने वाला एक तो ज़ाहिर है उनके पास हथियार तो है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर डोडियाल से भी कहीं छोटी मोटी इतला रहे थे, लेकिन बाकी आज़ाद कश्मीर में अभी तक कोई अमन अमान की सूरत हाल खराब नहीं हुई। इसका मैं समझता हूँ अवामी एक्शन कमेटी को क्रेडिट जाना चाहिए और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फोर्सेज के इदारों को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में भी एक सियासी पार्टी अगर गलती न करती तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती। उस सियासी पार्टी ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने के लिए काम किया है, जिसके आने वाले दौर में उनको अवाम के सामने सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। बाकी फोर्सेज ने और अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी कोशिश की है। आज भी मैं देख रहा था अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबरान है शौकत नवाज मीर साहब और उमरदीन कश्मीरी, उन्होंने लोगों से बार बार अपील की है कि कोई वायलेंस नहीं करेगा, कोई तशद्दुद के जाएगा, कोई गमला नहीं तोड़ेगा, कोई डिसिप्लिन वो से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक अच्छा है कि उनको कंट्रोल किया, लेकिन ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बैठा जाए, जिम्मेदार हल्के हुकूमत पाकिस्तान की भी आज़ाद कश्मीर के कोर कमेटी वाले लोग बैठे हैं, उसका हल निकालें ताकि आज़ाद कश्मीर के लोग जिस ज़हनी कर्ब का शिकार हैं उससे बाहर निकलें और ये सूरत हाल खराबी की तरफ जाने से बच जाए। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उन्होंने कॉल करके ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम बाहर जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा है कि हमें अफसोस इस बात का है कि हम इंडियन एम्बेसी के बाहर, इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहरा क्या करते थे, एम्बेसी के बाहर हमें वो दूसरी तरफ हुई है। वो अफसोसनाक बात है, ये वो अफसोसनाक बात है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारा डायस्पोरा, हमारा कश्मीरियों का जो डायस्पोरा है, ये कश्मीरी नहीं, हम कहते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, इसमें ज़ाहिर है हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये डायस्पोरा आवाज़ है बैरून मुल्क मसला कश्मीर की, ये पाकिस्तान की आवाज़ है। इस डायस्पोरा से काम लिया जाना चाहिए और इस डायस्पोरा में उनके भी जो मुतालबात हैं, देखें ना आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, वो उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन सिस्टम डेड है। आज़ाद कश्मीर में बुरी तरह लॉकडाउन है, नेट बंद कर दिया गया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए, लैंडलाइन फ़ोन बंद कर दिए गए, दूसरे भी कोई रिसोर्सेज आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में तो है नहीं। इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है और इसको हुकूमत पाकिस्तान ही हल कर सकती है। अगर वो ये तवक्को करें, ये ख्याल रख कर बैठे हों कि अनवार इलाका और उनकी हुकूमत ये करेगी, तो अनवार इलाका उसकी हुकूमत ने खराबियाँ पैदा की, आज़ाद कश्मीर को तख्ता जन्नत बना दिया आज़ाद कश्मीर को, ये नहीं कर सकेंगे। उसके बावजूद देखें ना अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक हुकूमत तब्दील करने की बात नहीं की, वो इन्होंने ठीक किया है। यानी उनको सियासी मकासद नहीं है कि इनको हटा कर इस चेहरे को हटा कर दूसरे चेहरे को बैठा दें। वो कहते नहीं, इस्लाहत लाएं,
चाहे अनवर लाख बैठे हैं, चाहे सरदार अतीक साहब बैठे हैं, चाहे फारूक अदर साहब बैठे हैं, चाहे शाह गुलाम कादर साहब बैठे हैं, चाहे चौधरी यासीन साहब बैठे हैं या दूसरा कोई तीसरा बैठे, आप इस्लाहत ले आएं और गैर जरूरी अल्लाह तलाले बंद कर दें। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारी सड़कों की हालत खराब है, हमारे अस्पताल और स्कूल बहुत ही खौफनाक सूरत हाल का शिकार है, नागुफ्ता बे हालत है, इसको ठीक कर दें। ये वो मुतालबे हैं जिनको समझा जाना चाहिए। अच्छा भाई साहब, अगर बड़ी तादाद में, जिस तरह लाखों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और शाम तक या कल तक मजीद पहुंच जाएंगे, तो अब ये एक मजमा, बहुत बड़ा मजमा बन जाता है लाखों की तादाद में, तो फिर आगे क्या देखते हैं? अगर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती है, कोई नोटिस नहीं लेते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई नेपाल वाली सूरत हाल तो नहीं? देखें ना उस्मान ताहिर साहब, एक हद तक लोगों को आप लेकर चलेंगे तो वो आपके कंट्रोल में होंगे, वो आपके डिसिप्लिन में होंगे, लेकिन जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड और बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी तवक्को और गुंजाइश से भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें शरारत करने वाले अनासर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वाला, मुजफ्फराबाद और ये बड़े शहरों में काफिले पहुंचने से पहले ही हुकूमत पाकिस्तान को भी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी और आज़ाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप, नेपाल वाली सूरत हाल ये बन सकती है। देखें, आज़ाद कश्मीर में तो अब बिल्कुल हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमारी इस लीडरशिप की बात कोई सुनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में जो साहिब रिस्पेक्टेबल लीडरशिप है, हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तानी फौज के जो लोग हैं, आर्मी चीफ से भी इस बात की अपील है कि ज़रा इसका नोटिस लें और लोगों को बैठाकर उनको मुतमईन करें, ताकि कहीं देखें ना, अब जो जिन चीज़ों पर डेड लॉक हुआ है, उन डेड लॉक उन पर इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को वो हमें एक्शन कमेटी का मुतालबा कर रहे थे कि अभी नोटिफिकेशन लाकर हमारे हाथ में रखें। उन्होंने भी कहा था कोई कमीशन बना दें, कोई कमीशन बनाने की बात हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तस्लीम की 10 दिसंबर 2024 से पहले, जो जब इन्होंने आटा और बिजली सस्ती की उस वक्त तस्लीम की। उसके बाद साल पूरा गुजर गया, कोई नोटिस नहीं, उस पर अमल नहीं किया। और अभी इन मुज़ाकरात में आकर उन्होंने कहा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मौक़िफ़ था कि ये तो नोटिफिकेशन हमने जारी किया था, ये हमारी गलती थी, तो ये तो हम इस पर अमल ही नहीं कर सकते, आप मराद नहीं छोड़ सकते। यानी आज़ाद कश्मीर को 100 बंदा उसको लूट कर खाए और उनके खिलाफ लोग बोले तो उनको आप इंडियन एजेंट करार देते हैं। ये नहीं हो सकेगा, ये जमाना नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इस तरह पहले माजी में होता रहा है कि बोलने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह की उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, ये इराक का दुश्मन है, ये इंडियन एजेंट है, ये इसराइली एहलकार है, ये फलां एहलकार है, और अपना काम निकलवाने के लिए रास्ते बनाए जाते रहे। अब ये काम नहीं चलेगा। अब नौजवान पढ़ा लिखा वो आपसे पूछता है कि मेरे लिए आपने, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आपके पास जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में मेरे लिए कोई जॉब के मौके हैं, मैं डिग्री लेकर कहाँ जाऊंगा? जब आपने मेरिट नहीं रखेंगे, आप अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को आप भर्ती करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मुझसे आप क्यों तो करते हैं? अब देखें ना, इस वक्त आपने देखा होगा ज्यादातर वो लोग इस सारे सिस्टम की हमायत कर रहे हैं जो बेनिफिशियरी हैं, जो इस निजाम से मुतासरा बंदा, कोई एक बंदा। और फिर हमें ब्लैकमेलिंग क्या करते हैं? ब्लैकमेलिंग ये करते हैं कि जी ये निजाम खत्म हो जाएगा, ये खत्म। मैं कई बार कह चुका हूँ जनाब, मुझे कोई समझाए आकर, ये कोई वजीर मिशीर, रात को भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं निजाम खत्म हो रहा है। मैंने कहा जनाब निजाम खत्म होगा तो पहला टारगेट आप बनेंगे, एक आम नौजवान नहीं टारगेट बनेगा। हम तो आपके खिलाफ ही, नौजवान नस्ल तो आपके खिलाफ आवाज उठा रही है कि आप बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां इस्तेमाल न करें। आजाद कश्मीर के ट्रांसपोर्ट पूल में जो कापी है, उसमें किताबचा है, उसमें लिखा हुआ है कि आप 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ी, 1600 सीसी से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 4000 सीसी गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तो लोग मुतालबा कर रहे हैं। इस निजाम ने 75 सालों से आजाद कश्मीर के लोगों को दिया क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो फिर अगर खत्म हो जाएगा तो लोगों को किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो आपको होगा। आपकी पेंशन बंद हो जाएंगी, आपके मराद बंद हो जाएंगी, आपकी गाड़ियां छीन जाएंगी, आपकी फलां सहूलतें छीन जाएंगी, गैर मुल्की मसला कश्मीर के नाम पर टूर आपके छीन जाएंगे। एक आम आदमी को इससे क्या गर्ज है? अगर ये निजाम बचाना है तो मैं कहता हूं इनको थोड़ी कुर्बानी दें, ताकि एक इस्लाहत आए आजाद कश्मीर के अंदर। बजट डिसिप्लिन कायम होना चाहिए, मालियाती डिसिप्लिन कायम हो, आजाद कश्मीर के पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना हो। आप उस्मान साहब तो को नहीं कर सकते कि लोग अपनी मदद आपके साथ सड़कें निकलवाते हैं, अपनी मदद आपके साथ उनके ऊपर सोलिंग डालते हैं, अपनी मदद आपके साथ उनमें नालियां बनाते हैं, बाद में हुकूमत के वजीर मशीर उनके ऊपर पैसे हुकूमत से मुकर्रर करवा कर 10-20 लाख रुपया खर्च करके बाकी पैसे
ठेकेदारों से अपने मिलजुल कर खा पी जाते हैं। ऐसी यही सूरत है, लोग ये है वो निजाम जिसके खिलाफ लोग आवाज उठा भाई साहब के लोग खंबे अपने कंधों में उठा के वो पहाड़ों की चोटियों पे लेके जाते हैं। यही हुआ, बिजली ऐसी लगी है, ऐसी लगी है, और ये सारा मीटर लोगों ने खरीद कर लाए, बिजली इसी तरह लगी, तारें अपने कंधों पर उठा कर लाए, और ये एहसान जिताते हैं कि निजाम खत्म हो जाएगा, और फिर निजाम खत्म हो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा? निजाम का कोई फायदा, इस निजाम को तो लोग कहते हैं खत्म कर दें, इस निजाम को, जिस निजाम में सिर्फ 500 या 1000 बंदा बेनिफिशियरी है, सही बात है, वो निजाम बाकी रहे या न रहे, आम बंदे को क्या कर रहे इस निजाम से? बिल्कुल ऐसी है। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मजीद जो अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला उस पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नाजरीन, जो ताज़ा तरीन इतलात अभी आज तीसरे रोज़ की हैं वो यही हैं कि तमाम तर काफ़िले जो हैं आज़ाद कश्मीर भर से वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवादवा हैं, और अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया हुआ है कि तमाम लोग जो हैं जो ये चाहते हैं कि इस्लाहत हों वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचें, और आज़ाद कश्मीर भर से तमाम काफ़िले अब मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवादवा हैं, और अब मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के देखते हैं कि अगला लाए अमल अवामी एक्शन कमेटी का क्या होता है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का प्रोग्राम यहीं तक, खुदा हाफिज़।